Good morning. Uh, my name is Atif Jamshed. I am Assistant Professor, Senior Scale in Department of Information Technology. And today we are going to cover a very famous and very interesting topic. The name of the topic is decorators. Decorators, it's very interesting and play a vital role in Python programming language. And it's a frequently asked question during the interviews and competitive MCQ, right? So let's start decorator. What is decorator and all? So it's an introduction. So what is decorator? So in brief, if we say the definition of decorator is to enhance the functionality of any function. So in any programming language, we have different functions, right? So if you want to extend the functionality, you want to enhance the functionality of that existing function through some scenario or through some way, that way is called decorator. Okay, so there are some prerequisites for decorators that, as we know that everything in the Python are objects and the names we define are simply bound to these objects, and functions are also the objects, and very different names can be bound to the same functions. I just reading these prerequisites and I will explain each of it in the later slides. So this is the formal definitions. Generally, we can refer any book and any internet content, but I have beautifully decorated this definition in some way so that you can easily understand it. So what are decorators? These are the very powerful and advanced concept in Python technology, and that allow you to modify the or enhance the behavior of function or methods, right? So what is it all about? So let's understand what are the first class functions and what are the higher order functions first. So in Python programming language, we can easily pass the function as an argument. Okay, we can return the function from any other function, and we can assign the value of that function to a variable. We will see these all three these lines in the help of with the help of the example. So wait. So this is the generic syntax for decorators. We can see that we have a two nested. We have a two functions. One is outer function, is the inner one is nested function. Outer function name is decorator function, and that decorator function is returning the inner function. As you can see, the inner function is a wrapper function, and it is executing some code. Do not get confused with these star and double star. Okay, what is these? These are the arguments which you generally pass, like A, B, C, and D. These are the arguments. Okay, so this is the generic syntax, and whatever we are executing this decorator function is returning the inner function, that the name of that inner function is wrapper function. How we can use that decorator? So as you can see below, there is another function, the function to the decorator. This is the function where we want to extend the functionality. We want to extend the functionality of that function. The name of the function is decorator. In simple words, I must say, ये जो आपका फंक्शन है, फंक्शन टू द डेकोरेट, इस फंक्शन को हम डेकोरेट करना चाहते हैं. डेकोरेट का मानने का मतलब हम कोई सजाने का नहीं है, आप सजा भी सकते हैं. डेकोरेट का मतलब ये है कि कोई ऐसा कोड जो कहीं लिखा गया है, उस कोड को हम इस फंक्शन के ऊपर लागू करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं. सो द वेरी फर्स्ट वे इज टू डू इज डेकोरेटर. तो डेकोरेटर के यूज करने का तरीका होता है, हम एट द रेट नोटेशन यूज करते हैं. आप देख सकते हैं फंक्शन टू डेकोरेट फंक्शन के ऊपर आपने लिखा है एट द रेट एंड डेकोरेटर अंडरस्कोर फंक्शन. और ये डेकोरेटर अंडरस्कोर फंक्शन क्या है? एक डेकोरेटर है जो आपने अलग से बना रखा है, जो एक पर्टिकुलर काम कर रहा है. उस पर्टिकुलर वर्क को हम इस फंक्शन पर अप्लाई करना चाहते हैं. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज. मैं इसका एक बहुत सिंपल वर्जन आपको बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. लेट्स गो टू द कोड. सो एज यू कैन सी द वेरी फर्स्ट सेल, 9th सेल अगर आपको दिख रहा हो, 9th सेल में हम क्या कर रहे हैं? वी हैव अ फंक्शन, द नेम ऑफ द फंक्शन इज फर्स्ट, and we are passing this first function as a reference to a variable. The name of the variable is second. तो second एक variable है और first का reference हमने second नाम के variable में store कर दिया. So जैसे ही हमने second को as a function ट्रीट किया इस वेरिएबल को,
तो ये एक फंक्शन की तरह ट्रीट होगा, और हमने फंक्शन के अंदर, इस सेकंड के अंदर, जैसे ही हमने एक टेक्स्ट लिखा हेलो, इट विल प्रिंट अवर मैसेज, राइट। सो इन सिंपल वर्ड्स, जो मैंने अभी आपको बताया था कि पहली प्री रिक्विजिट क्या होती है कि आप अपने फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड वन इज फंक्शन कैन बी पास्ड एज आर्ग्यूमेंट्स टू अदर फंक्शन, मींस आपके पास दो फंक्शन है। एक फंक्शन है इंक्रीमेंट नाम का, जो कि एक वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है, और दूसरा है ऑपरेट नाम का, जो कि एक फंक्शन को ले रहा है और रिटर्न कर रहा है रिजल्ट। आपने एक ऑपरेटर नाम का फंक्शन है जो आपने बनाया हुआ है, उसके अंदर एक इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन पास कर दिया। तो हमने क्या किया, ये इंक्रीमेंट फंक्शन क्या करता है, वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है, आप ऊपर देख सकते हैं, और 10 की वैल्यू हमने पास की, तो 10 की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट करके क्या कर देगा, 11। तो हम फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको डेकोरेटर में अक्सर देखने को मिलेगा, कि नेस्टेड फंक्शन है। यहाँ पर ये फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, और आउटर फंक्शन जो है फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, तो फंक्शन कैन रिटर्न अनदर फंक्शन। So these are the three important things which we should know before starting the value of vectors. तो वेरी फर्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, डेफ एक फंक्शन बनाया है स्मार्ट सबट्रैक्ट के नाम पे, और स्मार्ट सबट्रैक्ट के अंदर एक और फंक्शन बना है नेस्टेड फंक्शन, जिसको हमने बोला है इनर फंक्शन। ये इनर फंक्शन कर क्या रहा है, ये कंडीशन चेक कर रहा है, अगर एक्स की वैल्यू वाई से छोटी है तो एक्स वाई में चला जाए और वाई एक्स में चला जाए, मींस वी आर सिंपली द स्वैपिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। और ये रिटर्न कर रहा है इस फंक्शन को, एक्स वाई को, जो वैल्यू स्वैप हुई। और आपका स्मार्ट सब फंक्शन क्या कर रहा है, इनर फंक्शन के रेफरेंस को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो आपने इस स्मार्ट सब फंक्शन जो था, इसने क्या किया है, सिंपल स्वैपिंग परफॉर्म की। अब आप देखिए नीचे आपने एक फंक्शन बना रखा है सब वन नाम का, जहां पे आपने ए बी वैल्यूज को पास कर रखा है। तो आप सपोज करो कि आपने आपने क्या करना है, आपने वैल्यूज को सब्सट्रैक्ट करना है। आप जानते हैं कि आप बड़ी वैल्यू से ही छोटी वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करते हैं, अदरवाइज रिजल्ट जो होता है माइनस में आता है। तो यहाँ पे इसने क्या किया कि अगर एक्स की वैल्यू अगर छोटी है तो एक्स को वाई बना दो और वाई को एक्स बना दो। तो जैसे ही इसने सब्सट्रैक्शन परफॉर्म किया, ठीक है, इसने देखा एक्स बड़ा है एक्स छोटा है, तो एक्स को वाई कर दिया और वाई को एक्स कर दिया, और ए बी में जो वैल्यू पास हुई, तो 56 आपने पास किया था वाई, और एक्स पास किया था 12 में। जैसे इसने देखा एक्स की वैल्यू छोटी है, तो एक्स को 56 बना दिया और वाई को 12 बना दिया, और रिटर्न कर दिया वैल्यू, तो 44 विल बी द आंसर। तो ये क्या कर रहा है, इसने क्या किया है, इस सब्सट्रैक्शन फंक्शन की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर दिया। कैसे एक्सटेंड कर दिया है इसने, सिंपली आपने जो कोड लिखा था यहाँ पे स्मार्ट सब के अंदर, जो कि एक फंक्शन को रिटर्न कर रहा था, उसको एट द रेट स्मार्ट सब नाम के डेकोरेटर को आपने कॉल किया। तो डेकोरेटर के यूज करने का तरीका क्या है, डेकोरेटर के यूज करने का तरीका ये है कि जो भी फंक्शनैलिटी आपने अलग से लिखी है, उस फंक्शन को दूसरे फंक्शन जहां पे आपको अप्लाई करना है उसके पास एट द रेट नोटेशन के साथ आपको यूज करना है, एज सिंपल एज दैट। एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि बहुत पॉपुलर है, अपर केस डेकोरेटर। ये अपर केस डेकोरेटर आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, वी आर जस्ट कन्वर्टिंग द एनी केस वैल्यू टू द अपर केस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपने एक क्लास इनर फंक्शन लिया है, अंदर एक फंक्शन अपर केस डेकोरेटर है, तो नेस्टेड फंक्शन है। और ये नेस्टेड फंक्शन रैपर क्लास, रैपर जो फंक्शन है उसको रिटर्न कर रहा है। और क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है उस जो भी रिजल्ट आप अंदर वैल्यू पास करते हैं उसको अपर, रिजल्ट डॉट अपर मतलब उसकी वैल्यू को अपर केस में कन्वर्ट कर, ठीक है। तो इस केस को आपने क्या किया, एज ए डेकोरेटर नीचे ग्रीट नाम के फंक्शन पे यूज किया। तो ये क्या करेगा, जैसे ही आपने वैल्यू पास करोगे, ठीक है, इस डेकोरेट के अंदर हेलो वर्ड को शेयर कर देगा, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो वी आर जस्ट सिंपली द enhancing the values, enhancing the functionality of any function. Last but not the least, you can see decorator। आपने क्या किया है, जो भी आप लिखो, जो भी आप प्रिंट कराओ, आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट है, जो भी आप प्रिंट कराओ उसकी वैल्यू 3 बार रिपीट हो, ठीक है। तो आपने बार बार रिपीट करने का एक फंक्शन बनाया। वो फंक्शन क्या है, ऊपर आप देख सकते हैं एक रिपीट डेकोरेटर नाम का फंक्शन है, उसके अंदर एक और डेकोरेटर फंक्शन है, ठीक है, और उसके अंदर एक और डेकोरेटर फंक्शन। इस फंक्शन क्या कर रहा है, लूप लगा रहा है, और लूप लगाने के बाद जितना नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पास करोगे उतनी बार वो वैल्यूज को कॉल करेगा और return करेगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने अंदर इस डेकोरेटर में 3 पास किया, तो 3 बार रिपीट करेगा इस वैल्यू को, कौन सी वैल्यू को, जो हमने एज ए फंक्शन प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, ग्रीड के लिए। तो अगर मैं यहाँ 4 पास करूंगा तो 4 टाइम प्रिंट हो जाएगा, 5 पास करूंगा तो 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, मैं तो रिपीट कर। तो आपने देखा कि हम किसी भी फंक्शन को, अगर अपने पास कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को एक फंक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट को, और उस रिक्वायरमेंट को एज ए डेकोरेटर हम यूज कर सकते हैं एट द रेट नोटेशन लगाने के बाद। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। तो इस एग्जाम्पल से, ये जेनरिक एग्जाम्पल था, मैंने आपको 3 नए एग्जाम्पल्स आपको बताए
These are the references you can go through. आप यहाँ पर देख सकते हैं डेकोरेटर्स के और डिटेलिंग अगर आपको चाहिए। मैंने यहाँ से डेकोरेटर का कंटेंट रेफर किया, ठीक है, डिस्क्लेमर में। थैंक यू सो मच।